Students, yesterday we completed sums of exercise 10.1. Now today I will explain you few more concepts related with circle which are going to be used to solve the sums of exercise 10.2. For that, let us take these three circles. Okay, one point is there. Okay, one point is inside the circle, here is one point on the circle, and here is one point outside the circle. Okay, how I have taken these three circles and these points, one circle and this point is inside the circle, another circle, two in which the point is on the boundary of the circle, third circle where the point is just outside the circle. Now if you are asked to check how many tangents are possible in each of these cases, if I try to draw the tangent, is it possible? No. It is intersecting at 2 points and I know that tangent is that line which intersects the circle only at one point. So and you can see here it is intersecting at 2 points. So what is that line called which intersects the circle at 2 points? Yes, recall it. Yes, that is the secant. It is not a tangent. It is the secant. Now come to the second case. So now if I draw a line which is passing through this point, then of course it is intersecting the circle only at this point A. It was here, otherwise now it is here, point A. So here only one tangent is possible if the point lies on the boundary of the circle. If the point lies in the, as in the third case, it lies outside the circle, then how many tangents can be possible? So now this, I can draw a line which intersects it here at one point. I can draw one more line here which is intersecting the circle at this point, P, Q. But if I try to draw any other line other than these two, either it will go outside or it will go inside, then it is not possible. It means if a point lies outside the circle, then we can draw two tangents to the circle from an external point. I think the point is clear. Let us take it again. If the point lies inside the circle, then no tangent is possible. If the point lies on the boundary of the circle, then we can draw one tangent to the circle. If the point lies outside the circle, then we can draw these two tangents to the circle from an external point. Students, can you, as I told you, what is this line called which intersects the circle at 2 points? क्या कहते हैं? अभी बताया था, that is secant. अब मुझे बताओ, what is the difference between the secant and the chord? What is the difference between secant and chord? क्या डिफरेंस है? सोचो जरा, क्या है? चलो मैं बताती हूँ. देखो, secant क्या है? ये एक लाइन होती है which cuts the circle at 2 points. It can be extended in both the directions infinitely. लेकिन tangent क्या है? Tangent होता है एक लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट यानी फाइनाइट लेंथ के साथ है. Chord is the line segment. This is the difference. Okay, students, if there is a circle and there is a point outside the circle, then I told you that we can draw two tangents from this external point. We can draw two tangents, है ना? Suppose this is P, this is A, this is B. What is A? A is the point of contact of this tangent
and what is the B? B is also the point of contact of this tangent, है ना? अब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट is the length between the point of contact and this external point. Length of tangent is the distance between the point of contact and the external point. Is the distance between the point of contact and the external point. तो PA is the length of tangent and PB is also the length of tangent. हाँ जी, this is your theorem number 10.2. क्या है theorem में? The lengths of the tangents drawn from an external point to the circle are equal. ये prove करना है हमें. अभी मैंने बताया कि what is the length of the tangent? External point से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. और हम क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है, ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है. 10.1 दैट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लेक्चर, उसमें क्या था? अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो जो रेडियस ड्रॉ होती है, तो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो कल कराया था. एंड वी विल मेक द यूज ऑफ दैट थ्योरम इन दिस थ्योरम. तो अब हमें क्या दिया हुआ है? अ सर्कल, एक सर्कल दे रखा है विद सेंटर O, ये सेंटर O है, और हमें ये पॉइंट P भी गिवन है, और ये जो टेंजेंट्स है PA एंड PB, ये दो टेंजेंट्स भी गिवन है. ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि P से A तक जो ये टेंजेंट की लेंथ है और ये P से B तक की टेंजेंट लेंथ बराबर है, इक्वल है. वी हैव टू प्रूव दिस PA इज इक्वल टू PB. अब हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया. हमने क्या किया? O से A तक को ज्वाइन किया, O से B तक को, एंड O से P तक को भी ज्वाइन किया. अभी हम वी आर गोइंग टू मेक द यूज ऑफ दैट थ्योरम number 10.1 that radius and the tangent are perpendicular at the point of contact. अब आप देखो, ये मेरा B जो है this is the point of contact, इस टेंजेंट के लिए B point of contact है, और OB क्या है? रेडियस. तो as we know radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. At the point of contact. This implies OB is perpendicular to PB. This implies angle OBP is equal to 90 degree. Similarly, OA, अब आप ये देखिए, ये इस वाले टेंजेंट के लिए OA फिर रेडियस है, तो OA will be perpendicular as it is perpendicular here. This is perpendicular. Similarly, this is also perpendicular. So OA is perpendicular to PA. This implies which angle? OAP. Angle OAP is equal to 90 degree. This is number 1. This is number 2. Now I am taking these two triangles, this and this. This one I am taking this triangle and I am taking this triangle also. Okay. So now in triangle OAP and triangle OBP, angle OBP is equal to angle OAP is equal to 90 degree by 1 and 2. अभी हमने प्रूफ किया कि ये दोनों जो है एंगल्स, ये दोनों सेम है. उसके बाद OA is equal to OB है. OA क्यों है जी इक्वल? सोचिए जरा, OA इक्वल टू OB क्यों है? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं, इस वजह से इक्वल है. तीसरा, इन दोनों ट्रायंगल्स में OP कॉमन है. OP इज इक्वल टू OP कॉमन है. दैट्स व्हाई. अब ये देखिए, ये एक राइट ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज और एक साइड और ये 90 डिग्री राइट एंगल
ये इसके राइट एंगल एक हाइपोटेनियस, सॉरी दिस इज द हाइपोटेनियस और एक ये इसकी साइड इसके इक्वल है ये, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP by RHS. When these two triangles are congruent, then their all the corresponding parts will also be equal. That's why AP is equal to, therefore PA is equal to PB by CPCT. Hence it is proved. हाँ जी, I have taken example number 1. इसमें क्या दिया है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिगर ड्रॉ करते हैं। तो पहले क्या बोला है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं। कॉन्सेंट्रिक, देखो कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रिक जहां को वर्ड आ जाता है यानी सेम, सेंट्रिक यानी कि सेम सेंटर वाले सर्कल जिनका सेंटर सेम है तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो हमारे पास ये मैंने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ले लिए। वैसे तो आप बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो जिनका सेंटर सेम हो, लेकिन हमें बोला गया कि हमने दो ही लेने हैं, उसका सेंटर हमने दोनों का O ले लिया है। अब उसने बोला द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये जो लार्ज वाला सर्कल है इसकी जो कॉर्ड है, लेकिन कौन से वाली, उस कॉर्ड को भी स्पेसिफाई किया है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, वो वाली कॉर्ड इस लार्ज सर्कल की जो कि इस छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। यानी कि ध्यान से देखो कि ये जो लार्ज वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है वो स्मॉलर वाले सर्कल का क्या बन गई, टेंजेंट, क्योंकि वो उसको एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है। is bisected, this chord is bisected, this is the point of contact, so this chord is bisected at this point of contact, यानी P जो है वो इस AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी AP is equal to PB है। this we have to prove in this question। तो अब हमें पहले तो गिवन क्या है, गिवन में दिया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O, AB is the chord of bigger circle, chord of bigger circle which touches the smaller circle, smaller circle at point O, at point O। टू प्रूफ में क्या है, AP is equal to PB हमें प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, ज्वाइन O to P, OP को ज्वाइन किया। अब आप एक चीज देखिए, ये जो OP है, OP is the radius of the smaller circle, OP is the radius of the smaller circle, and by theorem 10.1 radius and tangent are perpendicular at the point of contact। तो हम इसका प्रूफ लिखते हैं, since OP is the radius of the smaller circle and AB is the tangent, AB is the tangent to smaller circle with P as point of contact, है ना। OP स्मॉलर सर्कल का रेडियस है और AB इसका टेंजेंट है, P इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। दिस इंप्लाइज OP is perpendicular to AB by theorem 10.1
क्या है 10 पॉइंट थ्योरम? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये रेडियस और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है, लेकिन जो ये टेंजेंट है वो बिगर सर्कल के लिए क्या है? स्मॉलर सर्कल के लिए जो टेंजेंट है, बिगर सर्कल के लिए वो क्या है? बिगर सर्कल के लिए वो कॉर्ड है। बट नाउ AB इज द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। बिगर सर्कल के लिए तो वो कॉर्ड है। और आपने ये 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि कभी भी किसी सर्कल में एक कॉर्ड अगर आपके पास है और सेंटर से अगर कॉर्ड पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देन दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इनटू इट डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पढ़ा था ना आपने 9th में, वही थ्योरम हम यहां यूज करें। नाउ AB इज द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल एंड OP is perpendicular to AB. This implies AP is equal to PB because क्या बताई थी मैंने आपको थ्योरम? वही यहां पर थ्योरम एज ए सपोर्टिव रीजन लिखी जाएगी, दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, perpendicular from center to this chord bisects the chord. Hence it is proved. Now let us take example 2. इसमें क्या दिया? Two tangents TP and TQ are drawn to a circle. Two tangents TP and TQ are drawn from this external point T. Center इस सर्कल का O है। अब आपको प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये कौन सा एंगल? PTQ, PTQ, यानी ये एंगल जो है दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल, मींस एंगल OPQ। ये यानी ये एंगल TPQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ताकि थोड़ा सा हमारा लिखने का इजी हो जाए, मैं इन दोनों एंगल्स को x ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ जी x? ये मैंने ये x लिया, ये y, ये भी x हो जाएगा। क्यों x? क्यों भाई? क्योंकि इन ट्राइंगल TPQ आपको पता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, अभी आपको थ्योरम कराई मैंने कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो एक ट्राइंगल की जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। तो लेट एंगल, इनका नाम मैंने रखा है TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP इज इक्वल टू x रखा मैंने। ठीक है, अब इसके बाद इस एंगल का नाम रखा y और इसका नाम रखा z। ठीक है, एंड एंगल OPQ इज इक्वल टू y एंड एंगल OPQ एंड एंगल PTQ, एंगल PTQ को मैंने रखा z, ताकि जब हम इनको स्टेप्स करेंगे लिखें सो इट विल बिकम कन्वीनियंट फॉर अस। तो अब आप एक चीज देखिए कि सम ऑफ 3 एंगल्स बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तीनों एंगल्स का सम क्या है? इन ट्राइंगल PTQ x plus z is equal to 180 degree. Okay, so now 2x plus z is equal to 180. So your z, this 2x is equal to 180 degree.
minus z. So x will be equal to, so x angle will be equal to 180 by 2 minus z by 2. 2 से डिवाइड कर दिया ना पूरे को, तो दिस इज योर नंबर 1. ठीक है, अब आ जाइए, बिकॉज OP इज द रेडियस टू दिस टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? OP is perpendicular to TP because radius and tangent are perpendicular at the point of contact. इस वजह से, इस थ्योरम की वजह से, therefore what will happen, x plus y is equal to 90 degree. Therefore x is equal to 90 degree minus y. This is your number 2. By 1 and 2, देखो यहां से भी x की वैल्यू निकली, यहां से भी, so by 1 and 2 180 degree, so this is 90 ना, x is equal to, let me write it, 90 degree minus z by 2. This is your 1. So x की वैल्यू यहां से क्या है, 90 degree minus z by 2 is equal to 90 degree minus y. So this 90 degree cancel by 90 degree. So you are left with minus z by 2 is equal to minus y. Minus cancel by minus, z is equal to 2y. So what is z? Z is angle PTQ is equal to 2. What is angle y? Angle OPQ. And hence it is proved. But before that, here you must you need to mention it, because from external point lengths of tangents are same, are equal, therefore PT is equal to PQ. ये लिखना पड़ेगा आपको, इसीलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, क्योंकि इन अ ट्राइंगल एंगल्स इक्वल टू, सॉरी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. तो बिल्कुल दोबारा से एक बार मैं समझा देती हूँ, दोबारा से आराम से इसको समझिए कि हमें दिया हुआ है एक सर्कल में एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जाते हैं, तो आपका ये वाला जो एंगल है, ये छोटा वाला ये जो एंगल है ये, और इसमें इस एंगल में रिलेशनशिप है कि ये एंगल इसका डबल है, या कह लीजिए ये इसका हाफ है. तो हमने क्या किया, सबसे पहले, क्योंकि ये ट्राइंगल अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल में ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम है, वही मैंने बताया है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लेंथ्स इक्वल होती है. अब एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल है, और इनका नाम मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि x है, और इसका नाम मैंने अपनी तरफ से y एज्यूम किया, इसका नाम z एज्यूम किया. अब इसके बाद इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री है. रीजन दीजिए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इस वजह से. अब इससे हमारे पास आपका x की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर ली. उसके बाद अब आ जाइए, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है. रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देयरफॉर y plus x is equal to 90 डिग्री है. यहां से भी x कैलकुलेट कर लिया, x हमने इस ट्राइंगल से भी कैलकुलेट किया था, x हमने ये इस प्रॉपर्टी से भी कैलकुलेट कर लिया. अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और इससे हमारे y और z में रिलेशनशिप आ जाएगा. हाँ जी स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज आपकी 10.2 है उसके हम जल्दी से तीनों क्वेश्चंस जो शुरू किए हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लेट अस डिस्कस. यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ. फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक पॉइंट Q है, उससे ये पॉइंट Q है सपोज कीजिए, एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24. यहाँ से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है जो 24 सेंटीमीटर का है, एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर, इसके सेंटर से ये जो
O से Q की डिस्टेंस है दैट इज गिवन 23 सेंटीमीटर। ये आपका 23 सेंटीमीटर एंड यू आर टू फाइंड आउट दिस। आपको क्या निकालना है? द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 है, सॉरी ये मैंने 23 लिखा है, ये 25 है। आपको सेंटर से इस टेंजेंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप ये देखिए कि ये एक राइट ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज की लाइन 25 है। आपका ये दिया हुआ है, इस अगर आप एंगल इसको लेते तो बेस दिया और परपेंडिकुलर आपको निकालना है बाय यूजिंग द पीजीटी। यू कैन डू इट, ट्राई इट योरसेल्फ। नेक्स्ट है टीपी एंड टीक्यू। इसमें ये दिया है आपके पास, ये टीपी एंड दिस इज टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, ठीक है, और ये सेंटर है इसका O और 110 डिग्री ये दिया हुआ है और आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी जरा यूज करना अपने आप कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, यू विल बी able to solve it very easily. Next है if the tangents PA and PB, suppose these tangents PA and PB, this is PA and PB from the point P to the circle with center O are inclined to each other at an angle 80 degree. These angles, these tangents are inclined at angle 80 degree. 80 डिग्री पर आपस में इंक्लाइंड है, एक दूसरे पर एंगल बना रहे हैं। ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो उनके बीच में एंगल, दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री। फाइंड एंगल P एंड दिस इज O, POA निकालना है। पहले तो इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को देखिए, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि ये लेंथ्स ऑफ टेंजेंट सेम है, ये कॉमन है, ये 90 डिग्री RHS से कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, है ना, बाइसिपिसिटी। तो आप ये ध्यान रखना हमेशा, ये एंगल भी दोनों सेम होते हैं और ये एंगल भी दोनों सेम होते हैं इसके। तो अब आप ऐसा कीजिए कि ये 80 है तो ये कितना होगा? मैंने बोला ना ये दोनों सेम होते हैं, ये 40 हो गया। अब इसके बाद ये रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर, ये 40, ये 90, सो यू कैन फाइंड आउट दिस। हमेशा ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रही हूं कि अगर इस तरीके से देयर आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल पर अगर ड्रॉ किए गए हैं तो ये 90 है रेडियस एंड टेंजेंट, ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये इक्वल होता है इसके, अगर हम इसको यहाँ बीच में बाइसेक्ट कर दें। अदरवाइज अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 90, ये 90, ठीक है। और अगर आपको ये एंगल दिया है तो आप ये निकाल सकते हो, ये दिया है तो ये निकाल सकते हो। नाउ यू कैन सॉल्व फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, यू कैन डू फर्स्ट 3 क्वेश्चंस of exercise 10.2 yourself. Try these questions. Okay, bye.